हाँ जी बेटा देखो, नेक्स्ट टॉपिक है अपना। टॉपिक का नाम की है शंट, है ना बच्चे। तो शंट की चीज़ होती है, देखो अपनी बुक्स ज़रा सामने रख लो और पढ़ो। शंट है, शंट इज़ अ लो रेजिस्टेंस connected in parallel to the galvanometer or ammeter. It protects the galvanometer or ammeter from strong currents। ठीक है ना, की मतलब बेटा ਜਿਹੜਾ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋ ਰੇਂਜ ਐਮੀਟਰ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੋ ਰੇਂਜ ਐਮੀਟਰ मतलब एक तरह का एमीटर ही है बट बड़ी लो रेंज वाला। कहना मतलब कि बहुत घट करंट ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਈਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ठीक है, अच्छा ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਮਈਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖੋ ਆ ਫਿਗਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤਨਾ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ आई जी ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਰੰਟ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮਈਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ठीक है ना, पर अगर इस जितना ये करंट मईयर कर सकता है उस तो ज़्यादा करंट अगर इस दे विचों बाई चांस किसी वजह करके पास हो जाए तो इट मे डैमेज। जिदा मान के चलो बई ये 20 मिली एम्पीयर मैक्सिमम करंट ਨੂੰ ਮਈਅਰ कर सकता है, पर किसी सोर्स का करंट ਜਿਹੜਾ है वो 30 मिली एम्पीयर है। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ इंस्ट्रूमेंट 20 मिली एम्पीयर करंट ਨੂੰ ਮਈਅਰ कर सकता है, अगर उसके ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ 30 मिली एम्पीयर करंट ਨੂੰ पास ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। तो इस चीज़ तो बचाने ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਦੇਖੋ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਲੋ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਐਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਐਸ ਸਟੈਂਡਸ ਫॉर ਸ਼ੰਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਮਈਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸ਼ੰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਲੈਟ ਅਸ ਸਪੋਜ਼ ਬਈ ਇਹਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਰੇਂਜ 20 ਮਿਲੀ ਐम्पीयर ਹੈ। ਐਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਰੇਂਜ 20 ਮਿਲੀ ਐम्पीयर ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਕਰੰਟ ਆ ਗਿਆ 30 ਮਿਲੀ ਐम्पीयर। ਹੁਣ 20 ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਬਾਕੀ 10 ਸ਼ੰਟ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਵੀ ਡੈਮੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਕਰੰਟ ਵੀ ਸਰਕਟ ਚੋਂ ਕੀ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਪਾਸ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। तो ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਦਾ ਬੱਚੇ, ਸ਼ੰਟ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੋ ਜ਼ਰਾ ਨਾਲ। ਇਫ ਦਾ ਕਰੰਟ ਫਲੋਇੰਗ ਇਨ a circuit is strong, a galvanometer or a low range ammeter cannot be put directly in the series with the circuit because it will damage the instrument। ठीक है ना, to overcome the difficulty, low resistance shunt is connected in parallel with this instrument, then a major portion of the current passes through the resistance, low resistance, and only small portion of the current passes through the instrument। due to it the galvanometer or an ammeter remains safe। ठीक है ना, अच्छा ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੰਟ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇੱਧਰੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਰੰਟ ਆਇਆ आई, तो इस करंट का कितना पोर्शन गलवैनोमीटर चो पास करेगा तो कितना पोर्शन शंट चो पास करेगा, वो असी एक स्पैशल कैलकुलेशन के नाल जिहड़ा है वो मईयर कर सकते हैं। ठीक है, मैं तुहानूं दिखाना कैलकुलेशन। देखो आई की है, टोटल करंट जिहड़ा गलवैनोमीटर चो पास कर रहा है, सर्किट चो पास कर रहा है, सॉरी आई दा आई जी पोर्शन गलवैनोमीटर चो पास कर गया और आई एस पोर्शन शंट चो पास कर गया। इसदा मतलब आई इज़ इक्वल टू आई जी प्लस आई एस। ठीक है ना, सो आई एस इज़ इक्वल टू आई माइनस आई जी। ठीक है ना, हूँ लेट अस सपोज जो जी है आ वाला जी ये की अगर अजे दिस इज़ द रजिस्टेंस ऑफ गलवैनोमीटर। मान के चलो जो आप गलवैनोमीटर यूज़ कर रहे हैं उसका रजिस्टेंस कितना है, लेट अस सपोज जी। ठीक है बच्चे, ठीक है, उसका रजिस्टेंस कितना है जी। ठीक है, अच्छा हूँ देखो बेटा क्योंकि गलवैनोमीटर और शंट दोनों किवें है बच्चे, पैरलल दे विच है। एंड यू नो दैट ਜਦੋਂ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਪੈਰਲਲ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੈਕਿੰਡ ਚੈਪਟਰ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਰੋਸ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਜਿਤਨਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਹਦੇ ਅਕਰੋਸ ਹੋਏਗਾ ਐਸ ਦੇ ਅਕਰੋਸ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਜੀ ਦੇ ਅਕਰੋਸ ਹੋਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਪਾਂ ਓਮਸ ਲਾ ਨਾਲ ਕੱਢਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਐਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ आई एस, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅਕਰੋਸ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस, मतलब कि आई एस मल्टीप्लाई बाय एस। ये अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होएगा, आई जी मल्टीप्लाई बाय जी। ठीक है ना, बट अकॉर्डिंग टू दी थियोरी ये दोनों पोटेंशियल डिफरेंस सेम होंगे, मतलब कि आई जी इंटू जी का प्रोडक्ट कि इक्वल होएगा आई एस इंटू एस। हुण इस इक्वैलिटी तो तुसी चाहो तो आई जी भी निकाल सकते हो, आई एस भी निकाल सकते हो। जिवें जे तुसी आई जी निकालना है तो किवें निकालोगे, किमें निकालोगे, देखो आई जी इंटू जी के इक्वल है आई एस इंटू एस ते आ वाला आई एस रिप्लेस करो और वो जगह ते की पुट कर दो आई माइनस आई जी। ठीक है बेटा, क्योंकि आई एस की वैल्यू आ देखो उपर कितनी बननी है आई माइनस आई जी, वो तुम इत्थे पुट कर दो। ठीक है ना, फिर की करो
ਆ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਮਲਟੀ ਓਪਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਸ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਫਿਰ ਆਈ ਜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮਸ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਲਓ, ठीक है ना, अंदर रह जाएगा जी प्लस एस ना डिवाइड कर दो, तो बाय दिस इक्वेशन यू कैन फाइंड आई जी, ठीक है ना। तो इतों तुहाडे कोल ओ आ जाएगा, इतों तुहानूं पता लग जाएगा कि तुहाडा जिहड़ा टोटल करंट है जिहड़ा कि फ्लो कर रहा है सर्किट विचों, टोटल करंट उसका कितना पोर्शन गलवैनोमीटर चों लंघेगा तो कितना पोर्शन शंट चो पास करेगा। अगर इसकी कैलकुलेशन करनी है तो कोई गल नहीं, फिर आही इक्वेशन दोबारा लिखो आई जी इंटू जी, ठीक है ना। जिवें लास्ट टाइम तुसीं की कीता सी आई एस नूं लिख दिता सीगा आई माइनस आई जी, दिस टाइम आई जी नूं लिख दिओ आई माइनस आई एस, ठीक है ना। आ तुहानूं दिखाई दे रहा हुण, आ देखो आई जी नूं चेंज करके की लिख दिता आई माइनस आई एस, और फिर जी नाल अंदर मल्टीप्लाई करके आई एस वालियां टर्म्स एक पासे करके, और आपां की ने कर लिया बच्चे आई एस की कर लिया फाइंड आउट कर लिया, विच इज़ इक्वल टू आई इंटू जी ओवर जी प्लस एस, ठीक है ना। सो आ इक्वेशन तुहानूं दस दिंदी है गलवैनोमीटर चो कितना करंट फ्लो कर रहा है, आ इक्वेशन तुहानूं दस दिंदी है बई शंट चो कितना करंट की करेगा फ्लो करेगा, ठीक है बच्चे। अच्छा, समटाइम एग्जाम च आंदा है कि शंट के यूजेस की है, देखो तुहाडी बुक दे लिखे उत्ते लिखे हुए यूजेस की है शंट के, तुसीं अपनी बुक तो ही पढ़ लो। पहला यूज़ की है, देखो शंट कैन बी यूज टू प्रोटैक्ट द गलवैनोमीटर फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग करंट, ठीक है ना। एक तो स्ट्रॉन्ग करंट तो अगर गलवैनोमीटर नूं बचाना है तो आप इसनूं यूज़ करते हैं। दूसरा यूज़ की है बच्चे इहदा, ए शंट इज़ यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग गलवैनोमीटर इनटू द एमीटर। शंट की हैल्प नाल एक लो रेंज वाला एमीटर गलवैनोमीटर विच भी बदलिया जा सकता, सॉरी गलवैनोमीटर एमीटर च भी बदलिया जा सकता है, हाई रेंज वाले एमीटर विच कन्वर्ट कर सकते हैं। ये किवें कर सकते हैं, अपना अगला टॉपिक यही है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो भी आपां हुणे डिस्कस करांगे। इस तो अगला टॉपिक यही डिस्कस करना है। ए शंट में बी यूज टू इनक्रीज द रेंज ऑफ एमीटर, मतलब शंट नाल असीं अपने एमीटर की रेंज वधा सकते हैं। कहना मतलब अगर एक गलवैनोमीटर तुहाडा जिहड़ा है वो मान लो 20 मिली एम्पीयर तक के करंट नूं मेजर कर सकता है, तो विद द हैल्प ऑफ शंट तुसीं मतलब इस दे कोलों 30 40 50 तुहाडी जिन्नी डिज़ायर हैगी है उतने मिली एम्पीयर करंट तुसीं इस कोलों मेजर करवा सकते हैगे, ठीक है ना। अच्छा, एक नीचे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है की है, देखो ध्यान नाल की है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। कहंदा अ गलवैनोमीटर has a resistance of the 50 ohm, a resistance of 5 ohm is connected across the terminals, what part of the total current will pass through the galvanometer, ठीक है ना। तो टोटल करंट का कितना पोर्शन गलवैनोमीटर चों की करेगा पास करेगा, तो किवें करोगे तुसीं राजे, देखो किवें करोगे तुसीं, जिवें मैं तुहानूं हुणे उपर समझाया ही है, ठीक है। तुसीं देखो तुसीं पता की करो, तुहानूं इदां करन दी जरूरत नहीं है जिद्दां इन्हें कीता होया, तुसीं डायरैक्टली आ वाला फॉर्मूला यूज़ करो, आ वाला जिथे मैं हुण पॉइंट करदा पिया है ना, आई जी इज़ इक्वल टू आई इंटू एस ओवर जी प्लस एस, ठीक है। आ देखो गलवैनोमीटर की रजिस्टेंस 50 दी हुई है, तो इत्थे 50 पुट करो, एस की रजिस्टेंस 5 दी है, तो इत्थे 5 पुट कर लेना, ठीक है ना। तो पुट करके उन्हें आपां नूं पुछया है कि वट पार्ट ऑफ द टोटल करंट, मतलब कि आई टोटल करंट है, आई जी तुसीं निकालना है, तो मतलब कुछ नहीं है, बस तुसीं की करो इत्थे वैल्यूज़ पुट कर दिओ और तुहाडा सारी कैलकुलेशन आंसर देगी 1/11, तो आई जी ओवर आई किस दे इक्वल आ जाएगा 1/11, ठीक है ना। सो आपां कहांगे कि टोटल करंट का 1/11 पार्ट जिहड़ा है वो गलवैनोमीटर चों की करेगा पास करेगा, ठीक है बच्चे। नैक्सट अपना टॉपिक है देखो एमीटर। एमीटर की है, एन एमीटर बुक तो पढ़ो, एन एमीटर इज़ अ लो रेजिस्टेंस गलवैनोमीटर, इट इज़ यूज्ड टू मेजर द करंट इन अ सर्किट, ठीक है ना। तो गलवैनोमीटर जिहड़ा हुंदा ना राजे वो लो रेंज एमीटर हुंदा है, ठीक है ना। अच्छा, तो मतलब अगर असी एक गलवैनोमीटर नूं की करना है एमीटर दे विच कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। मेन इस टॉपिक विच आपां यही पढ़ना है बई देखो एमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो करंट नूं मेजर करती है, ठीक है ना। तो ये साडे गलवैनोमीटर ही हुंदे आ जिन्हां नूं असीं की कीता हुंदा है एक प्रॉपर वे दे नाल एमीटर विच की करते हैं कन्वर्ट करते हैं। किवें कन्वर्ट करते हैं पढ़ो बुक दे उत्ते, अ गलवैनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर बाय यूजिंग द लो रेजिस्टेंस वायर इन पैरेलल विद द गलवैनोमीटर, ठीक है ना। मतलब असीं की करते हैं एक लो रेजिस्टेंस वायर जिहड़ी है वो असीं की करते हैं गलवैनोमीटर दे नाल पैरेलल च लगा दिंदे आ, और फिर की हुंदा है साडा गलवैनोमीटर जिहड़ा है वो एमीटर विच की हो जाता है कन्वर्ट हो जाता है। वो जिहड़ी असीं लो रेजिस्टेंस वायर लगाने हैं ना दैट इज़ कॉल्ड द शंट, जो कि आप पिछे पढ़ के भी आए हुए हैं। जिवें देखो फिगर विच तुहाडे कोल एक गलवैनोमीटर है, ठीक है ना। मान लो एक गलवैनोमीटर है जिहदी कि ना रेंज बहुत घट हैगी है, कहना मतलब कि एज्यूम करते हैं कि तुसीं इस नाल सिर्फ 20 मिली एम्पीयर का करंट मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो असी चाहते हैं कि इसे गलवैनोमीटर तो असी 50 मिली एम्पीयर तक का करंट भी की कर लीए मेजर कर लीए, ठीक है। तो जिवें मैं तुहानूं पिछे भी बोल रहा सी कि तुसीं की करोगे इस दे नाल एक प्रॉपर वैल्यू का शंट लगाना है,
ठीक है ना। वो कितनी वैल्यू का शंट पैरेलल च लगाना है उसकी कैलकुलेशन आप हुणे दसते हैं भी आप किवें करनी है कैलकुलेशन। और कैलकुलेशन बिल्कुल उदा ही है जिद्दां आप पिछे करके आए हैं, ठीक है ना। एज्यूम करो कि गलवैनोमीटर का जिहड़ा ओरिजिनल मैक्सिमम रेंज है वो IG हैगा, जिद्दां मैं तुहानूं हुणे 20 बोल रहा सी, ठीक है ना। टॉपिक करन लगे आप नंबर नहीं लिखते, तो मतलब आप दसांगे भी मान लो इसका ओरिजिनल मैक्सिमम रेंज कितना है IG, इतना करंट मैयर कर सकता है। तुसीं ये तो मैयर करवाना चाहते हो I मतलब ये रेंज तो ज़्यादा, जिद्दां मैं तुहानूं बोलिया सी भी मान लो 20 है तो मैयर करवाना चाहते हो 50। हुण होएगा कि जगह तुसीं I करंट इचों पास करोगे तो वो जिहड़ा गलवैनोमीटर तो दी मैक्सिमम रेंज वाला करंट है वो तो ये चों पास कर जाएगा, ठीक है ना। बाकी जिहड़ा I माइनस IG है वो किहदे चों पास करेगा, शंट चों पास करेगा। तो जिवें मैं तुहानूं हुणे पिछे बोल के आया बई क्योंकि दोनों कंपोनेंट्स पैरेलल च हैगे आ तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस G दे अक्रॉस होएगा उतना ही S दे अक्रॉस होएगा, ठीक है ना। तो इसदा मतलब IG इंटू G का जिहड़ा प्रोडक्ट है वो किस दे इक्वल होएगा राजे, I माइनस IG इंटू S दे प्रोडक्ट के इक्वल होएगा, ठीक है ना। एंड फ्रॉम दिस कैलकुलेशन आ देखो IG इंटू G का प्रोडक्ट किस दे इक्वल, I माइनस IG इंटू S दे इक्वल। तो सीधा तुसीं इत्थों S निकाल लो, IG ओवर I माइनस IG इंटू G। बाय यूजिंग दिस रिलेशन यू कैन कैलकुलेट S, ठीक है ना। आ देखो इस दे नीचे अपनी बुक तो पढ़ो जरा की कर सकते तुसीं, कहंदा दस S कैन बी कैलकुलेटेड, ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਸੀਂ S कैलकुलेट कर सकते हो इस इक्वेशन तो। इफ दिस वैल्यू ऑफ द शंट इज कनेक्टेड इन पैरेलल, बुक च पढ़ो, विद द गलवैनोमीटर इट वर्क्स एज एन एमीटर फॉर द रेंज 0 टू I एम्पीयर। मतलब बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, मतलब अगर इन्नी वैल्यू का शंट तुसीं पैरेलल च लगाता तो तुहाडे गलवैनोमीटर की रेंज जो कि पहला 0 तो IG सी IG वो बन गई 0 तो I, मतलब जिद्दां पहला तुहाडा गलवैनोमीटर मान लो 0 तो 20 एम्पीयर तक मैयर कर सकता सी, 20 मिली एम्पीयर तक, हुण तुहाडा वही गलवैनोमीटर 0 तो 50 तक भी मैयर कर पाएगा, ठीक है ना। तो ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ इतनी वैल्यू का शंट लगाना पएगा ਜਿਹੜਾ इस कैलकुलेशन तो सॉल्व करांगे। ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ मैं बोलता ਪਿਆ भी ਅਸੀਂ 20 वाले ਨੂੰ 50 'ਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ तो ਅਸੀਂ कितनी वैल्यू का शंट लगाना है, तो कुछ नहीं हैगा, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ 20 ਮਿਲੀ ਐਂਪੀਅਰ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ 50 ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ 20 ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੋਂ ਸੋਲਵ ਕਰੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਆਏਗਾ ਹੀ ਨਾ, ਬਸ ਉਤਨੀ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਸ਼ੰਟ ਅਗਰ ਪੈਰਲਲ 'ਚ ਲਗਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਰ ਗਈ ਬੱਚੇ, increase कर दी। Now the same scale of the galvanometer which was recording the maximum current IG before conversion into the ammeter will record the maximum current I after conversion into the ammeter। वही जो मैं तुहानूं बोल रहा सी भी तुहाडा galvanometer पहला IG तक measure कर सकदा सी करंट नूं, हुण I तक भी measure कर सकदा हैगा, ठीक है ना। It means each division of the scale in ammeter will show will be showing higher current that दैन दैट ऑफ द गलवैनोमीटर। मतलब तुहाडी ना गलवैनोमीटर की बच्चे स्केल उही रहिंदी हुंदी है, स्केल नहीं बदलती, जिहड़े तुसीं गलवैनोमीटर देख रहे होवोगे तुहानूं उही स्केल दिखाई देगी, ठीक है ना। बस तुसीं इह समझ लो कि उसे स्केल की रेंज की कर गई है, इनक्रीज़ कर गई है। मतलब तुसीं इह समझो जिवें मैं तुहानूं दिखाना हमने, जिवें देखो तुहाडे सामने आ एक स्केल बनी हुई है ना, आ एक स्केल बनी हुई है। हुण एक ऐसा गलवैनोमीटर है जिहड़ा 0 तो लैके 20 मिली एम्पीयर तक की कर सकता है, मैयर कर सकता है, मैक्सिमम 20 तक कर सकता, ठीक है ना। हुण ਇਹਦਾ मतलब अगर ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਸ਼ੰਟ ਲਗਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ 50 ਮਿਲੀ ਐਂਪੀਅਰ ਤੱਕ ਦਾ ਵੀ ਕਰੰਟ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ 20 ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ 20 ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 50 ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ IG ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ IG ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ I ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਦੀ ਹਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਮੈਜ਼ਰ ਕਰੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ कन्वर्जन तो पहला ये 20 एम्पीयर मैयर कर रहा सी, मतलब कि हर डिवीजन कितना मैयर करती पी सी, टोटल कितनियां डिवीजन है देखो 5 10 15 ते 20 डिवीजन भी 20 करंट भी 20, मतलब कि हर डिवीजन 1 मिली एम्पीयर मैयर कर रही सी। अच्छा अगर मान के चलो तुसी प्रॉपर वैल्यू का शंट लगा के इसकी रेंज इनक्रीज़ कर ली और हुणे 50 मिली एम्पीयर तक मैयर कर रहा है, तो इट मीनस चलो कैलकुलेशन आसान करने लिए 40 मान के चलते हैं, 40 मिली एम्पीयर तक मैयर कर रहा है। इट मीनस हर डिवीजन हुण कितना है, ठीक है ना। इतने 40 समझ लो, डिवीजन तो वही 20 है, 40 ओवर 20 कितना बन गया अपने को 2 बन गया, मतलब कि हर डिवीजन 2 मिली एम्पीयर मैयर करेगी। मतलब अगर पॉइंटर मान लो इत्थे जाके खड़ा हो जाए जिथे 5 लिखा है तो असी रीडिंग में 5 नहीं कवांगे, असी कवांगे बई करंट कितना पास पाया है 10। अगर फिर इत्थे खड़ा हो गया तो असी कवांगे 10 नहीं, करंट कितना फ्लो करता पाया है 20। अगर पॉइंटर इत्थे खड़ा हो गया असी कवांगे 15 नहीं 30। अगर 20 ते खड़ा हो गया असी कवांगे 20 नहीं
40, ठीक है ना। तो इस चीज़ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਗਰ ਆਫ ਮੈਰਿਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਪਹਿਲੀ ਫਿਗਰ ਆਫ ਮੈਰਿਟ ਕਨਵਰਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਗਰ ਆਫ ਮੈਰਿਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਫਿਗਰ ਆਫ ਮੈਰਿਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਗਰ ਆਫ ਮੈਰਿਟ IG ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ N ਸੀ, IG ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਈ ਕਿੰਨਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਰੰਟ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ N ਹੁੰਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ठीक है ना। मतलब फिगर ऑफ मैरिट किवें निकाली दी है, IG डिवाइडेड बाय N। तो नवी फिगर ऑफ मैरिट कितनी बन गई, I डिवाइडेड बाय N। N तो नंबर ऑफ डिवीजन तो नहीं रहन गया, करंट की कर गया, इंक्रीज कर गया साडे कोल, ठीक है बच्चे। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू अंडरस्टैंड। ये एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है ना। जो गलवैनोमीटर एमीटर च कन्वर्ट हो जाता है, तो बच्चे उस तो बाद उस ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਐਮੀਟਰ 'ਚ ਬਦਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੰਟ ਨੂੰ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰਲਲ 'ਚ ਲਗਾਉਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟੂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸਿਸ ਆਰ ਕਨੈਕਟਡ ਇਨ ਦਾ ਪੈਰਲਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਦੋ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸਿਸ ਅਗਰ ਪੈਰਲਲ 'ਚ ਕਨੈਕਟ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਬਾਈਨਡ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਾਲਦੇ ਹਾਂ, 1/RP इज इक्वल टू 1/G प्लस 1/S, वही 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है ना। एलसीएम लैके इतना आ गया तो रेसिप्रोकल करके व्हेन यू विल कैलकुलेट RP यू विल गेट RP इज इक्वल टू GS ओवर G प्लस S। और तुहानूं पता है ना कि पैरलल विच रजिस्टेंस लगाने नाल नैट रजिस्टेंस की हो जाती डिक्रीज़ कर जाती है। तो यदा मतलब इस तरह ये प्रोसैस करन दे नाल जदों गलवैनोमीटर नूं एमीटर च बदलते हो तो एमीटर की नैट रजिस्टेंस डिक्रीज़ कर जाती है। मतलब अगर असीं गलवैनोमीटर ते एमीटर की रजिस्टेंस को कंपेयर करिए तो एमीटर की रजिस्टेंस घट होएगी, और एमीटर की रजिस्टेंस घट होनी भी चाहिए है। मतलब एमीटर एक घट रजिस्टेंस वाला इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि इस तो असीं करंट मैयर करवाना है तो इसकी अपनी रजिस्टेंस घट ही होनी चाहिए है, ठीक है ना। जिन्ना घट रजिस्टेंस वाला एमीटर होएगा उन्ना ज़्यादा बैटर होएगा, ठीक है ना। अच्छा, तो जितनी ज़्यादा तुसीं किसी एमीटर की रेंज चाहते हो, मतलब जिन्ना तुसीं चाहते हो, जिद्दां मतलब मैं हुणे बोलिया भी तुसीं 20 वाला 40 च बदल लिया, मतलब तुसीं उहदी रजिस्टेंस घटा ली। अगर बाई चांस तुसीं चाहते कि नहीं मैं 40 तो भी ज़्यादा करंट मैयर करवाना है, ठीक है ना, दैट इज़ 50 करवाना या 60 करवाना है, तो ऑफकोर्स रजिस्टेंस होर भी घट जाएगी, ठीक है ना। जिन्ना ज़्यादा करंट मैयर करवाना चाहते हो उन्नी एमीटर की रजिस्टेंस घटती जाएगी। हायर द रेंज ऑफ, एक इत्थे लिख के रख लो, हायर द रेंज ऑफ द एमीटर लैसर विल बी इट्स रजिस्टेंस। तो सब तो वधिया एमीटर किहड़ा होया, आ देखो एन आइडियल, अज जिथे मेरा पॉइंटर चल रहा है, एन आइडियल एमीटर हैज़ रजिस्टेंस। अगर एक आइडियल एमीटर की गल करिए तो वो 0 उसकी की होंदी है, रजिस्टेंस होंदी है, ठीक है ना। आ देखो एक नीचे न्यूमेरिकल है, इसनों पढ़ो जरा की है, कहंदा अगर स्क्रीन तो नहीं पढ़िया जा रहा तो अपनी बुक तो पढ़ लो। एन एमीटर हैज़ रजिस्टेंस ऑफ 0.80 ओम कैन मैयर करंट अप टू 1 एम्पीयर। What must be the value of shunt resistance to be enable the ammeter to measure the current up to 5 एम्पीयर। मतलब वही ना, एक 0.80 ओम वाला गलवैनोमीटर है 1 एम्पीयर करंट ਨੂੰ ओरिजिनली मैयर कर सकता है, पर तुसी मैयर करवाना चाहते हो इस तो 5 एम्पीयर का करंट, तो की करना चाहिए, शंट लगाना चाहिए पैरलल विच। कितनी वैल्यू वाला, तो आ कैलकुलेशन तुहाडे सामने हुई है, इतनी वैल्यू वाला शंट की लगाना चाहिए है पैरलल दे विच। S इज इक्वल टू IG इंटू G ओवर I माइनस IG, ठीक है ना। सारिया वैल्यूज़ क्वेश्चन है ना। तो 0.2 ओम रजिस्टेंस वाला की करना चाहिए है, शंट लगाना चाहिए है। और आगे पढ़ो, व्हाट इज़ द कंबाइंड रजिस्टेंस ऑफ एमीटर एंड शंट। मतलब इदा जो एमीटर बनेगा शंट लगाने तो बाद जो एमीटर बनेगा उसकी रजिस्टेंस कितनी होएगी, तो मैं तुहानूं हुणे फॉर्मूला ऊपर दस के आया कि उसकी रजिस्टेंस कितनी होएगी बच्चे, इतनी, GS ओवर G प्लस S, ठीक है ना। तो G जड़ा है वो क्वेश्चन च गिवन है, S तुसी निकाल लिया है, ठीक है ना। तो आफ्टर मेजरमेंट आंसर कितना आ जाएगा, 0.16 ओम, ठीक है। अच्छा बच्चे देखो, जिवें एमीटर करंट मैयर करने वाला डिवाइस है, वोल्ट मीटर की होंदा, ये पोटेंशियल डिफरेंस मैयर करने वाला डिवाइस है। की डेफिनेशन है, अ वोल्ट मीटर इज अ हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर, उल्टा हो गया, एमीटर लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर सी ये हाई रेजिस्टेंस वाला होंदा है। इट इज़ यूज्ड टू मैयर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑफ अ सर्किट के किसी भी 2 पॉइंटा पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है तो वी विल यूज़ वोल्ट मीटर। किवें बदलीदा है एक गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर में, पढ़ो, एक गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू द वोल्ट मीटर बाय कनेक्टिंग हाई रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस नहीं, हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज़, पैरलल नहीं, सीरीज़ विद द गैल्वेनोमीटर। उल्टा हो गया सारा कुछ, उत्थे आपां लो रेजिस्टेंस पैरलल च लगाई सी जदों आपां गैल्वेनोमीटर नूं एमीटर च बदलना सी। हुण आपां गैल्वेनोमीटर नूं वोल्ट मीटर च बदलना तो हाई रेजिस्टेंस सीरीज़ च लगाई हैगी है। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन द रेंज ऑफ वोल्ट मीटर
एंड कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। ठीक है ना, कितनी हाई वैल्यू की रजिस्टेंस गलवेनोमीटर नाल सीरीज़ च लगानी चाहिए है, वो कहता इस गल ते डिपेंड करता है कि तुसीं उहदे कोलों कितना पोटेंशियल डिफरेंस मैयर करवाना चाहते हैं। ठीक है ना, तो मैं तुहानूं दिखाना, देखो फिगर विच तुहानूं दिखाई दे रहा हुण, एक फिगर मैं दिखाना तुहानूं सी, आ देखो इस फिगर में दिखाया गया है किवें एक गलवेनोमीटर वोल्ट मीटर च बदलिया। देखो गलवेनोमीटर दे नाल हाई रजिस्टेंस किदां लगी हुई है सीरीज़ दे विच, और कितनी रजिस्टेंस सीरीज़ दे विच लगानी है वो डिपेंड करता है कि तुसीं इहदे तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस मैयर करवाना चाहते हो। मन के चलो कि तुसीं इहदे तो 20 पोटेंशियल डिफरेंस मैयर करवाना चाहते हो, तो मैं तुहानूं एक कैलकुलेशन दिखाना, कुछ चीज़ां अपनी बुक तो पढ़ो जरा। देखो की लिखिया, लेट जी इज़ द गलवेनोमीटर रजिस्टेंस, मान लो गलवेनोमीटर की रजिस्टेंस जी है, एन इज़ द नंबर ऑफ स्केल डिवीजनस ऑन द गलवेनोमीटर। एन की है बई जी गलवेनोमीटर से स्केल बनी होंगी ना, छोटे 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 लाइनां बनी होंगी, मान लो गिनती में किनियां हैगियां एन। के इज़ फिगर ऑफ मैरिट, बई फिगर ऑफ मैरिट तेनों कहा भी एक डिवीजन कितना करंट की करती है मैयर करती है। अगर एक डिवीजन करंट मैयर करेगी के, तो नंबर ऑफ डिवीजन होणगियां एन, दैन करंट विच कैन प्रोड्यूस द फुल स्केल डिफ्लैक्शन वो कितना होएगा, आई जी इज इक्वल टू एन इंटू के। जरा अपनी बुक चो देखना, मैं सामने स्क्रीन के उत्ते कली फिगर ही निकाली हुई है, चीज़ां बुक चो पढ़ो। लेट वी बी द पोटेंशियल डिफरेंस टू बी मैयर्ड बाय द गलवेनोमीटर। कहता मन के चलो कि तुसीं जिहड़ा गलवेनोमीटर है या वोल्ट मीटर है, तुसीं उहदे कोलों 20 पोटेंशियल डिफरेंस की करवाना चाहते हो मैयर करवाना चाहते हो। टू डू सो अ रेजिस्टेंस आर ऑफ सच अ वैल्यू इज कनेक्टेड इन सीरीज विद गलवेनोमीटर सो दैट इफ द पोटेंशियल डिफरेंस वी इज अप्लाइड अक्रॉस ए एंड बी, ए करंट आई जी फ्लोज थ्रू द गलवेनोमीटर। कहता मन के चलो कि तुसीं मैक्सिमम 20 पोटेंशियल डिफरेंस मैयर करवाना चाहते हो। ठीक है ना, अच्छा हुण अगर तुसीं दो रजिस्टेंसिस सीरीज़ विच लगातियां तो सर्किट की टोटल रजिस्टेंस कितनी होगी। देखो टोटल रजिस्टेंस बुक ते लिखा है कितनी हो गई, जी प्लस आर। इत्थे हुण ओम्स ला लगाओ, पोटेंशियल डिफरेंस वी, टोटल रजिस्टेंस जी प्लस आर, करंट कितना आई जी। तो ओम्स ला की बोलता बच्चे, ओम्स ला बोलता है कि आई जी किदे इक्वल होएगा, वी ओवर जी प्लस आर। ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो जी प्लस आर वी ओवर आई जी, एंड आर किदे इक्वल हो गया, देखो आर निकाल लिया, जी उधर ले जाओ, तो आर इज इक्वल टू वी ओवर आई जी माइनस जी। तो दिस इज़ द फॉर्मूला बाय विच यू कैन कैलकुलेट आर, जिस नाल तुसी आर निकालोगे। इफ दिस वैल्यू ऑफ आर दे नीचे जो लिखा पढ़ो, इफ दिस वैल्यू ऑफ आर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद गलवेनोमीटर it works as a voltmeter of 0 to V volt. Now the same scale of voltmeter can record the maximum potential difference of Ig into G before conversion, will record V after conversion। ठीक है ना, तो पहला ये कितने पोटेंशियल डिफरेंस मैयर कर सकता सीगा, IG इंटू जी, बट आफ्टर कन्वर्शन ये V पोटेंशियल डिफरेंस मैयर कर सकता है। इट मीनस ईच डिवीजन ऑफ द स्केल ऑफ द वोल्टमीटर विल मैयर शो द हायर पोटेंशियल दैन दैट ऑफ द गलवेनोमीटर। मतलब कि पहला हर डिवीजन कितना पोटेंशियल डिफरेंस मैयर कर सकती सी। अगर अपने तुसी बिल्कुल नीचे चले जाओगे ना, पेज के नीचे देखो बिल्कुल फुट दे विच एक चीज़ लिखी हुई है, बिफोर कन्वर्जन साडा गलवेनोमीटर कितने पोटेंशियल डिफरेंस मैयर कर सकता सी, इतने पोटेंशियल डिफरेंस, आई जी इंटू जी बाय एन। ठीक है ना, आई जी इंटू जी की बने, पोटेंशियल डिफरेंस ही बने ना, करंट इंटू रजिस्टेंस डिवाइडेड बाय एन का मतलब है कि नंबर ऑफ डिवीजन डिवाइड करके सानू पता लग गया कि पहला डिवीजन इतनी वोल्टेज में मैयर कर सकती सी, बट आफ्टर कन्वर्जन टोटल वोल्टेज कितनी होगी, टोटल वोल्टेज हो गई इतनी, कितनी, आई जी इंटू जी प्लस आर, टोटल इतनी वोल्टेज में मैयर कर सकता है। तो डिवाइड बाय एन का मतलब है कि हर डिवीजन कितनी वोल्टेज मैयर कर सकती है, इतनी वोल्टेज, आई जी इंटू जी प्लस आई बस आर बाय एन। तो बिफोर आफ्टर कन्वर्जन इतना की हो गया साढ़े को फिगर ऑफ मैरिट हो गया। फिगर ऑफ मैरिट मतलब कि हर डिवीजन कितना पोटेंशियल डिफरेंस मैयर कर सकती है। और इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितनी बन गई वोल्टमीटर की, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट कितनी बन गई राजे अपने को आफ्टर कन्वर्जन, इट बिकम्स जी प्लस आर, क्योंकि दो रेजिस्टेंसेस सीरीज में हो गई हैं, तो ऑब्वियसली इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऐड करके निकालेंगे। ठीक है बच्चों, अच्छा नाउ वधिया वोल्टमीटर वो होंदा है जिसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होवे, तो आइडियल वोल्टमीटर वो होएगा जिसका रेजिस्टेंस कितना होवे, इन्फिनिटी। आइडियल एमीटर कौन, जिसका रेजिस्टेंस 0 होवे। आइडियल वोल्टमीटर कौन, जिसका रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होवे। ठीक है बच्चों, सो ये सी अपने को सारा अज का टॉपिक। आ नीचे कुछ ना नोट पॉइंट्स है, इन्होंने तुसीं पढ़ लेना, तुहानूं समझ लग जाएगी। यह नीचे देखो एक राजे न्यूमेरिकल है, ये भी तुहानूं हुण पता लग जाएगा। देखो अपनी बुक चों स्टेटमेंट पढ़ लो। A galvanometer with a coil of resistance 12 ohm
shows the full scale deflection at the 2.5 milliampere. How will you convert into the voltmeter of range 7.5 volt? तो ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਵੋਲਟਮੀਟਰ 'ਚ ਬਦਲੋਗੇ ਜਿਹਦਾ ਰੇਂਜ 0.7.5 ਵੋਲਟ ਹੋਵੇ? तो ਆ ਦੇਖੋ ਲਗਾ ਦਿਓ ਨੀਚੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਸੀ, R इज इक्वल टू V ओवर IG माइनस G, है ना। V 7.5 है, IG 2.5 मिली एम्पियर सी, तो इस करके 10⁻³ लगाया, G फॉर 12, ठीक है ना। रेजिस्टेंस इतनी हुई है तो सॉल्व करके आंसर आ गया 2988 ओम, ठीक है ना। तो इतनी रेजिस्टेंस वाला वोल्टमीटर सॉरी रेजिस्टेंस अगर तुम गलवैनोमीटर ਨਾਲ सीरीज लगाओगे तो वो 7.5 वोल्ट तक के पोटेंशियल डिफरेंस ਨੂੰ मेजर कर लेगा। और कन्वर्ट होने तो बाद वो रेजिस्टेंस कितनी बनेगी, R+G, दैट इज़ 2988 जी रेजिस्टेंस लगाई है, 12 वो अपनी होगी, ऐड होके 3000 ओम की आ गया, आंसर आ गया, ठीक है बच्चे। तो ये तुसी देख लेना टॉपिक सारे, ठीक है ना, बहुत ईजी है। कोई डाउट होया तो कल मैं जो जूम लैक्चर लगावांगा वो मैंने पूछ लेना, मैं दोबारा दस देंगा, ठीक है ना। चलो ओके बेटा जी।